Assalamu alaikum students. Walaikum Assalam, sir. Hope everyone is fine. So today I'm going to deliver last lecture, which is a very important topic regarding the course. That is the climate change impacts on the extreme events. So we are talking about today, inshallah. Okay, so let's start our today's lecture. So as you're well familiar that climate change actually impacts on various sectors like health, agriculture, forest, water resources, and we are interested in especially water resources and agriculture as a water resources engineer. And we already learned that climate change actually impact three main things, which directly three things from which the water resources are actually वेरी और चेंज उसको कह सकते हैं. सो थ्री थिंग्स जो चेंज होती हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, व्हाट वी लर्नड in our first couple of lectures. The first important thing is the temperature, and we are talking about the global warming. Secondly, we discuss about the sea level rise. So जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उससे ग्लेशियर मेल्ट होगा, and when glacier melt happen, it means the water ultimately reaches the ocean, and there is a chance of sea level rise, and the scientists are observing the sea level rise from last 150 years. So that is evidence. So in addition to the temperature increase, sea level rise is extremely evident to the scientist. And third thing, the climate science community relate the temperature with the glacier melt or snow cover, because snow cover or glaciers are retreating, so ultimately there is a sea level rise. However, climate also affects the precipitation. So ultimately, with the change of the temperature, sea level rise, or glacier melt, or precipitation, the climate actually impacts on various fields like water resources, agriculture, health, coastal areas, or forest areas. So the climate change actually happens due to the human activities, which is anthropogenic activity, and these are already being seen over the polar regions to our backyards to the communities all over the world. And global climate change has already had observable effects on the environment, especially relevant to the frequent extreme weather events. What do you think about the extreme weather events? क्या सोच आती है इसके बारे में, extreme weather events? Sir, the extreme droughts, long-term droughts, or flash floods. Floods and droughts, and weather से related जो है basically that is the temperature and precipitation. Temperature अगर warming ज़्यादा होगी तो drought होगा, और अगर extreme weather on other side जो है, अगर हम कहते हैं कि
रेनफॉल है, एक्सट्रीमली हैवी रेनफॉल है, देन फ्लडिंग इवेंट्स। या ये भी हो सकता है एक्सट्रीम वेदर में कि स्नो एक्सट्रीमली हैवी जो है स्नोफॉल हो रही है, तो वो जो है इंक्रीज करेंगे ग्लेशियर्स को। तो सर स्ट्रॉन्ग विंड्स भी हो सकते हैं सर, हरिकेन्स अगर हो। Yes, डे hurricanes, tornadoes. So all these are parts of extreme weather events. और related to temperature जो है heat waves phenomena जो है, these are extreme weather events. तो extreme weather events में जो है वो आपके tornadoes हैं, heavy precipitation है, heat waves हैं, hurricanes हैं. So these are extreme weather events. If we look at the natural disaster in USA only from 1980 to 2011, so we can see there is an abrupt increase in the natural disasters, especially relevant to the meteorological events in addition to the climatological events. However, hydrological events भी जो है अगर 1980 से देखें with the passage of time वो increase हुए हैं। तो मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल और क्लाइमेटोलॉजिकल इवेंट्स, ठीक है, ये जो है इंक्रीज हुए हैं इन यूएसए। और मेट्रोलॉजिकल इवेंट्स में जो है यूएसए में जो बात की जाती है दैट इज रिगार्डिंग द स्टॉर्म्स, जिसमें हरिकेन्स या प्रेसिपिटेशन है, और हाइड्रोलॉजिकल इवेंट्स में जो है फ्लड है, while in the climatological events heat waves and droughts in addition to the forest fire. सो ये सारे के सारे नेचुरल डिजास्टर्स जो हैं ऑलमोस्ट यूएसए में जो है वो इंक्रीज हो रहे हैं इन नंबर ऑफ इवेंट्स। अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें ड्यू टू द एक्सट्रीम वेदर, ओवरऑल लॉसेस जो हैं वो भी इंक्रीज हुई हैं इन एडिशन टू द इंश्योर्ड लॉसेस। पाकिस्तान में जो है वो इंश्योरेंस का कंसेप्ट नहीं है। जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें इंश्योरेंस का कंसेप्ट है कि फॉर एग्जांपल अगर अर्थक्वेक आ जाता है, ठीक है, अर्थक्वेक की जो है लोगों ने इंश्योरेंस करवाई होती है अपने घरों की, या जो लोग जो है फ्लड प्लेन एरियाज़ में रहते हैं, रेजिडेंशियल एरिया है उनका, तो वो अपने रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या हाउसेस को जो है इंश्योर्ड करते हैं अगेंस्ट दी फ्लडिंग इवेंट्स, ठीक है। इसके अलावा जो कोस्टल रीजन है उधर जो रेजिडेंशियल एरिया है वो सुनामी के लिए जो है वो इंश्योरेंस लेते हैं। तो वर्ल्ड वाइड जो है वो लॉसेस भी बढ़ी हैं और जो इंश्योर्ड लॉसेस हैं वो भी जो है ओवरऑल इंक्रीज हुए हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम। एंड विद द क्लाइमेट चेंज ग्लेशियर्स जो हैं वो श्रंक हो रहे हैं, एज वी आर वेल फेमिलियर, दैट इज ड्यू टू द टेम्परेचर increase. Ice on rivers and lakes is breaking up earlier, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो अर्ली एंड ऑफ विंटर में जो है वो इंक्रीज हो रहा है। प्लांट्स एंड एनिमल्स रेंजेस हैव शिफ्टेड, वो माइग्रेट हो रही हैं एनिमल्स। ट्रीज आर फ्लावरिंग सूनर, स्प्रिंग जो है वो जल्दी आ जाता है, जो है विंटर की मैं बात कर रहा था कि एंड ऑफ विंटर जो है वो जल्दी हो रहा है, स्प्रिंग जल्दी स्टार्ट हो रहा है, तो ट्रीज जो है वो फ्लावरिंग जल्दी कर रहे हैं। सो दीज आर सम ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ द क्लाइमेट चेंज। और ग्लोबली अगर हम देखें इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबल टेम्परेचर राइज ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस, दैट इज द एनालिसिस बाय यूके मेट ऑफिस, हेडले सेंटर जो है यूके का। तो आप देख रहे हैं कि in addition to Pakistan, India, China, even the Central America, the crop yields fall. However, the water resources affected, especially in the South America, in the Europe region, in addition to the South Africa. However, ice sheet, Greenland ice sheet declined. इसके अलावा सी लेवल राइज जो है वो अरेबियन सी या जो यूरोपियन कोस्टल एरिया, वहाँ सी लेवल राइज जो है ऑब्जर्व की जा रही है। इकोसिस्टम भी जो है अल्टर हो रहा है।
However, especially if we look into the colors of the continental area, तो टेम्परेचर जो है वो आप स्पेशली देख रहे हैं इन द पोलर रीजन, वो इंक्रीज हो रहा है अराउंड मैक्सिमम अप टू 10 to 12 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, जब वो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये परमानेंट ग्लेशियर है इन एरियाज में, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये ग्लेशियर जो है वो रिट्रीट होना शुरू हो जाएंगे, मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे, जो कि हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता। However, ग्लोबली जो है टेम्परेचर जो राइज हुआ है दैट इज 4 डिग्री सेल्सियस इन द लास्ट सेंचुरी। क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स जो हैं उनको प्रिडिक्ट करना, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब, इट इज़ ए चैलेंजिंग वर्क। या हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी प्रिडिक्शन जो है वो बेसिकली बहुत मुश्किल है। However, in part of the world, especially in Europe, America, and the Asian countries, some predictions have been studied. Especially in Europe, अगर हम देखें जो prediction है, there is an increased risk of inland flash floods, more frequent coastal flooding, increased erosion from storms and sea level rise, glacier retreats, reduced snow cover, extensive species losses, reduction of crop yield। तो ये प्रिडिक्शन जो है बहुत सारे साइंटिस्ट ने किए हैं यूजिंग द क्लाइमेट डेटा फॉर फ्यूचर, जिसमें हमने आरसीपीज, इफ यू रिमेंबर, हमने आरसीपीज डिस्कस किए थे इन आवर थर्ड और फोर्थ लेक्चर। तो जो एक्सट्रीम सिनेरियो है उसमें आरसीपी 8.5 है, बिजनेस एज यूजुअल जो है 6.2 है, इसके अलावा 4.5 है और 2.6 है। तो उन आरसीपीज के रिगार्डिंग जो है साइंटिस्ट ने जो है इम्पैक्ट असेसमेंट की हैं ओवर यूरोप, ओवर अमेरिका और ओवर एशिया। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में बाय 2020 between 75 to 250 million people are projected to be exposed to increased water stress. Yield from rain-fed agriculture could be reduced up to 50%. इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्लूडिंग एक्सेस टू फूड में भी severely compromised। तो ये अफ्रीकन रीजन की बात है बाय 2020 जो कि लास्ट ईयर था। However, in Asia, fresh water availability जो है it is projected to decrease, especially in central, southern और south east Asia। पाकिस्तान में जो है वो बेसिकली साउथ एशिया में आता है। Coastal areas will be at risk due to increased flooding. Death rates from disease associated floods and droughts expected to increase in some region of the Asia। तो ये बेसिकली डिफरेंट जो है स्टडीज से जो है ये मैंने बेसिकली एक्सट्रैक्ट किए इंफॉर्मेशन के। कुछ लोग यूरोप में स्टडी कर रहे हैं, अफ्रीका में, एशिया में या यूएसए में। तो बेसिक क्वेश्चन जो है क्लाइमेट साइंटिस्ट के लिए है कि एनी एक्सट्रीम वेदर इवेंट इज वेदर क्लाइमेट रिलेटेड टू द क्लाइमेट चेंज, के हर एक्सट्रीम इवेंट जो भी हो रहा है क्या उसका कोई रिलेशन है क्लाइमेट चेंज के साथ, या उसका कोई लिंक है क्लाइमेट चेंज के साथ, या कोई टेलीकनेक्शन है क्लाइमेट चेंज के साथ। रिसेंटली जो है साइंटिस्ट इसका आंसर करते थे नो, बट with the passage of time, with the recent advancements and findings, that answer actually needs to be refined। वो नो से निकल के हम कुछ जो है हमारे पास एविडेंस हैं, हम यस भी नहीं कह सकते, नो भी नहीं कह सकते, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जो हमारे पास एडवांसमेंट्स हैं, क्लाइमेट मॉडल्स की जो इम्प्रूवमेंट हो रही है, इसके अलावा जो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है हमारे एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन की या वेदर सिस्टम की इंक्रीज हो रही है, तो साइंटिस्ट अब कहते हैं कि उसको नो नहीं कहना चाहिए। हर एक्सट्रीम जो इवेंट है ना वो क्लाइमेट चेंज की वजह से है,
ना हम ये कह सकते हैं कि हर एक्सट्रीम इवेंट जो है वेदर इवेंट वो क्लाइमेट चेंज के बगैर हो रहा है, वो जो है हमें स्टडी करने की जरूरत है। However, IPCC reports जो suggest करती हैं the number of heat waves have increased and widespread increases have been occurred in the number of warm nights, के heat waves भी increase हो रही हैं, उनके numbers भी increase हो रहे हैं और widespread हो रही हैं, especially during the warm nights. The extent of regions affected by droughts has also increased as precipitation over land decreased while evaporation is increasing over the land due to the warmer condition or due to the temperature increase. तो drought की वजह से जो है वो drought extent वो जो है वाइड स्प्रेड हो रहे हैं। तो ये आईपीसीसी की रिपोर्ट्स जो हैं, जो कि असेसमेंट रिपोर्ट 5 मैंने बताया था कि वो पब्लिश हो चुकी है, 6 जो है वो बाय 2022 जो है अवेलेबल होगी। जनरली नंबर ऑफ हैवी डेली प्रेसिपिटेशन इवेंट्स that lead to flooding have increased but not everywhere. जो precipitation event हैं वो generally increase हो रहे हैं, not all over the world, कुछ जगहों पे which led to flooding in the past, जो कि increase हो रही हैं flooding events. इसके अलावा tropical storm and hurricane frequencies vary considerably from year to year, but evidence suggests substantial increase in intensity and duration of the tropical storms and hurricanes since 1970s. तो वो जो ट्रॉपिकल स्टॉर्म है या हरिकेन जो है उनकी फ्रीक्वेंसी और नंबर ऑफ द इवेंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। Here is a figure which is explaining weather events during 25th June to 5th July in 2012. तो हम देख रहे हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड जो एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, लाइक यूके में टोरेंशियल रेन है, आर्कटिक रीजन में जो है वो सी लेवल जो है लोएस्ट है, मीन्स के वो ग्लेशियर जो हैं वो ग्रो हो रहे हैं। इंडिया में फ्लड डिजास्टर था इस ड्यूरेशन में, बांग्लादेश में भी फ्लड डिजास्टर था। इसके अलावा जो है यूएसए में वाइल्ड फायर थी, स्पेशली इन दी सेंट्रल यूएसए रीजन, और ग्रीनलैंड में जो है आइस शीट इज सेट फॉर अनदर रिकॉर्ड मेल्ट, आइस शीट जो है वो मेल्ट हुई इस ड्यूरेशन में। तो ये एक्सट्रीम इवेंट्स जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड हैपन हो रहे हैं। another look of the extreme events globally, स्पेशली अगर हम पाकिस्तान देखें तो पाकिस्तान में जो है 2010 का जो है वर्स्ट फ्लडिंग इवेंट था, और इसकी मेन रीज़न जो है दैट इज़ द रशियन फॉरेस्ट फायर, और रशिया की जो 2010 की एक्सट्रीम हीट वेव थी उसकी वजह से रशिया फॉरेस्ट फायर हुई। और ये फॉरेस्ट फायर क्यों हुई, कुछ साइंटिस्ट ने स्टडी किया, बिकॉज दैट ईयर वाज एल नीनो ईयर, और एल नीनो ईयर में जो है स्पेशली जो सेंट्रल एशिया साउथ एशियन रीजन है इनके ऊपर ड्राई कंडीशन थी, रेन कम थी, तो जिसकी वजह से फॉरेस्ट फायर हुई, और फॉरेस्ट फायर के बाद एक्सट्रीम हीट वेव जनरेट हुई रशिया के ऊपर, जिसके बाद पाकिस्तान में वर्स्ट फ्लडिंग हुई ड्यू टू दी मॉइस्चर फ्लक्स फ्रॉम बे ऑफ बंगाल। इसके अलावा यूरोप में जो है 2003 में रिकॉर्डेड हीट वेव है, 2010 में चाइना में टोरेंशियल रेन है, यूके में जो है फ्लडिंग है, यूएसए में जो है स्टॉर्म्स जो हैं, नंबर ऑफ स्टॉर्म्स इंक्रीज हुए लाइक टोर्नेडोज, या जो है सेंट्रल रीजन जो यूएसए में है उसमें हरिकेन्स जो हैं उनकी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हुई, जिसकी वजह से फ्लडिंग इवेंट्स हैपन हुए। ब्राज़ील में ड्राउट था 2005 में, अर्जेंटीना में 2009 में एक्सेप्शनल हीट वेव थी। सो ये सारे के सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं। अब ये क्वेश्चन आ जाता है एज ए क्लाइमेट चेंज साइंटिस्ट, क्या ये सारे के सारे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं हैपन हुए ड्यू टू क्लाइमेट चेंज? तो हमारे पास जो आंसर है वो नो भी नहीं है और येस भी नहीं है, बिकॉज वी नीड टू
इन्वेस्टिगेट कि वाकई जो है वो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये एक्सट्रीम इवेंट हुए कि नहीं। और जैसा कि मैंने क्लाइमेट की डेफिनेशन बताई थी, द डिफरेंस बिटवीन द क्लाइमेट एंड वेदर। क्लाइमेट जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है लॉन्ग टर्म द एवरेज कंडीशन, और इसमें जो है वेरिएशन जो है बहुत ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट रहता है क्लाइमेट फॉर 5-10 ईयर, तो हम कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। अगर वो हम कहते हैं वो जो कंसिस्टेंट क्लाइमेट है उसमें टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, then we can call it climate change or temperature change due to the climate change। अगर एक साल में जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, दूसरे साल में बहुत डिक्रीज हो गया है, फिर 2 साल में इंक्रीज हुआ, 2 साल में बहुत डिक्रीज हो गया, तो वो जो इंडिविजुअल इवेंट्स हैं उनको क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करना जो है, इट इज़ नॉट एन ईजी जॉब एंड इट इज़ ए चैलेंजिंग वर्क, बिकॉज as a scientist our understanding is very less और limited। कह सकते हैं कि हमारा फिजिकल साइंस जो है या फिजिकल जो अंडरस्टैंडिंग है वो इस लेवल की नहीं है कि हम जो है इन एक्सट्रीम इवेंट्स को कोरिलेट कर सकें क्लाइमेट चेंज के साथ। However, with the passage of time, जैसे जैसे क्लाइमेट मॉडल्स जो हैं उनकी रेजोल्यूशन जो है फाइन होती जा रही है, हमारी अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होती जा रही है, तो साइंटिस्ट कुछ ना कुछ कहना शुरू हो गए हैं। लाइक जो हीट वेव की एग्जांपल है, स्नो मेल्ट की एग्जांपल है, या इंटेंसिटी ऑफ प्रेसिपिटेशन की बात होती है कि वो इंक्रीज हो रही है जिसकी वजह से फ्लडिंग इवेंट बढ़ रहे हैं, और हीट वेव्स की वजह से ड्राउट कंडीशन हो रही है। So recent studies, trends of climatic parameters, extreme weather events and evidences are predicting a shift in future climate। जो अभी स्टडी हुई है या फ्यूचर के लिए जो स्टडी हुई है, तो उसमें साइंटिस्ट कहते हैं देयर इज ए शिफ्ट इन फ्यूचर क्लाइमेट। वो शिफ्ट किस तरह का है? एज वी कैन सी इन दिस फिगर, on x-axis is the temperature, while on the ordinate or y-axis is probability of occurrence। और ये बेल शेप जो कर्व है, ये दो हैं इस फिगर में। द ग्रे कलर इज शोइंग द करंट क्लाइमेट एंड द ब्लैक बेल कर्व इज शोइंग द फ्यूचर क्लाइमेट। तो वो जो शिफ्ट इन फ्यूचर क्लाइमेट, तो ये शिफ्टिंग जो है ये राइट वर्ड हो रही है, मीन्स के टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, इट मीन्स कि जो है मोर एक्सट्रीम हॉट वेदर इवेंट्स होंगे या हीट वेव्स इंक्रीज होंगी। होwever, हम ये नहीं कह रहे कि जो कोल्ड वेदर जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। कोल्ड वेदर जो है वो रिड्यूस हो रहा है, हॉट वेदर जो है उसका ड्यूरेशन भी बढ़ रहा है और वो एक्सट्रीम हो रहे हैं। So note also that this doesn't mean that there will be no more cold weather. These cold events will become rarer but will not disappear। cold weather जो है वो disappear नहीं हो रहे, हम ये नहीं कह रहे। Excuse me। cold weather जो है वो या cold events जो हैं वो rare होते जा रहे हैं, और जो extremely hot weather events हैं वो फ्रीक्वेंट होते जा रहे हैं, फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और वो ज़्यादा हॉट होते जा रहे हैं। एक्सक्यूज मी, आई हैव टू पिक वन कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। मैं आज आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ इंशाल्लाह ताला रात तक। नहीं, मैं अभी क्लास में हूँ, क्लास ले रहा हूँ स्टूडेंट्स की, तो आज इंशाल्लाह ताला मैं फॉरवर्ड कर दूँगा। और डॉक्टर साहब भी आज फॉरवर्ड कर रहे हैं आप। हाँ जी, वो भी आज फॉरवर्ड कर रहे हैं सीवी के साथ, वो बाकी भी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू।
Okay, so there is a strongest evidence for some of the extreme events, or there is also a limited evidence for some of the extreme events. और इसमें जो है साइंटिस्ट जो हैं जिनमें एविडेंस स्ट्रोंगेस्ट है उनमें कॉन्फिडेंट है, ठीक है, लाइक हीट वेव्स। सबसे ज़्यादा जो है स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस जो है हीट वेव्स के ऊपर है, और उसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास जो है टेम्परेचर का डेटा बहुत ज़्यादा है, ठीक है, ऑल ओवर द ग्लोब। उसमें गेजेस भी हैं, सैटेलाइट डेटा भी है, ओशन के ऊपर भी जो है सी सरफेस टेम्परेचर है। तो हीट वेव्स के बारे में जो है ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है। इसके साथ जो है कोस्टल फ्लडिंग जो है वो भी इंक्रीज हो रही है। उसकी रीज़न जो है एक तो जो है सी लेवल राइज भी है, उसके साथ साथ सुनामी भी है, और एक्सट्रीम प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो है उसके बारे में भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। और ड्राउट्स जो हैं वो भी सीवियर होते जा रहे हैं। However, there is a limited evidence for tornadoes and hurricanes. बट हम ये नहीं कह रहे, या साइंटिस्ट ये नहीं कहते कि जो टोर्नेडोज हैं, हरिकेन्स हैं, उनके ऊपर क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि इन टोर्नेडोज और हरिकेन्स को ऑब्जर्व करना दैट इज़ अगेन ए चैलेंजिंग जॉब। उनको इजीली जो है उनको उनका डेटा जो है बेसिकली वो ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। टोर्नेडोज में स्पेशली जो है हमें जो है वो साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ में जो वेलोसिटीज़ होती हैं, ठीक है, वो हमें चाहिए होती हैं। तो टोर्नेडोज में तो कोई भी नहीं जाके वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता। इसी तरह हरिकेन्स जो हैं वो बहुत वाइड स्प्रेड होते हैं, तो हमारे पास ऑब्जर्वेशन उस लेवल की नहीं है कि हम अपने मॉडल्स को जो है वो रन कर सकें, ठीक है, उस लेवल के ऊपर। इसीलिए जो है लिमिटेड एविडेंस के साथ जो है साइंटिस्ट कहते हैं कि ये क्लाइमेट चेंज जो है वो इन एक्सट्रीम इवेंट्स को भी चेंज कर रही है with the limited evidence. So according to the recent IPCC extreme events report, IPCC ने जो है extreme event report भी publish किया है, the historical trend that are evident only grow stronger with climate change toward the end of the century। कि जो हमारे पास limited evidence भी हैं वो ये बता रहे हैं कि with the passage of time by end of century ये extreme events जो हैं वो सिर्फ ग्रो नहीं बल्कि स्ट्रोंगर होते जा रहे हैं। ये विद दी लिमिटेड एविडेंस जो है साइंटिस्ट ने इसको कंक्लूड किया है। However, the links between climate change and extreme weather or climatic events is unmistakable। कि वो जो है हम गलती नहीं कर सकते कि लिंक है इन एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स का विद दी क्लाइमेट चेंज, तो किसी किस्म की गलती नहीं होनी चाहिए as a scientist. So in the scientific community, that's a pretty uncontroversial statement. There's plenty of evidence that the rising global temperature due to growing concentration of greenhouse gases in the atmosphere will lead to more heat waves and coastal flooding। और ये जो है हमारे पास क्योंकि स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस है, इसलिए हम कहते हैं कि देयर इज़ नो कंट्रोवर्सी अबाउट दीज थिंग कि ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, उसके बाद टेम्परेचर राइज हो रहा है, तो हीट वेव्स और कोस्टल फ्लडिंग फिनोमेना भी जो है वो ज़्यादा हो रहे हैं। But the jury is still out on how precisely hurricanes and tornadoes are influenced by climate change, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड एविडेंस है, तो हम प्रिसाइजली नहीं बता सकते कि क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जो है टोर्नेडोज या हरिकेन्स के ऊपर कितना है। So then the number of questions arises, what's the connection between global warming and extreme weather? The answer is when it comes to heat wave and coastal flooding, the scientific evidence is clear and human-caused climate change is increasing these extreme weather events, means heat waves and coastal flooding. Rise in extreme precipitation events
in more regions and increasingly severe droughts in other are also closely linked to climate change. The effect of climate change on tornadoes and hurricanes is an active area of research because of limited evidence. Scientific confidence with observed data is currently low, though the underlying mechanisms of climate change are expected to play a role. तो इसका मतलब है स्टिल जो है हमारे पास ऑब्जर्व डेटा जो है वो लिमिटेड है, वो बहुत कम है, जिसकी वजह से जो है फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है इन सिस्टम्स की, वेदर सिस्टम्स की या एक्सट्रीम वेदर फिनोमेना को अंडरस्टैंड करना वो इतना इजी नहीं है। तो जब हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी तो हम अपने क्लाइमेट मॉडल्स को, सर्कुलेशन मॉडल्स को इम्प्रूव करेंगे। जब सर्कुलेशन मॉडल्स को इम्प्रूव करेंगे तो इसका मतलब है उन सर्कुलेशन मॉडल को या क्लाइमेट मॉडल को यूज़ करते हुए हम प्रिडिक्शन बेहतर कर सकते हैं। Tropical storm and hurricane frequencies vary considerably from year to year, but evidence suggests substantial increase in intensity and duration since 1970. Climate change has the potential to alter prevalence and severity of extremes such as heat wave, cold wave, storms, floods, and droughts. Though predicting changes in these types of events under a changing climate is difficult. इनको प्रेडिक्ट करना जो है वो मुश्किल है, और that is very hot topic for research for the scientists. Understanding vulnerabilities to such changes is a critical part of estimating vulnerabilities and future climate change impacts on human health, society, environment, food, agriculture, whatever the discipline you are interested in to learn how climate change actually affect those disciplines. तो प्रिडिक्ट करना जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को फॉर फ्यूचर, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट कि हम क्लाइमेट मॉडल में जो है वो डेटा लगा लें, इनिशियल कंडीशन रखें, बाउंड्री कंडीशन रखें, और क्लाइमेट मॉडल हमें बता दें कि जी 2025 में जून के फलां दिन फलां टाइम के ऊपर जो है वो हीट वेव जनरेट होगी। सो दैट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब। हालांकि हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस हैं, उसके बावजूद अंडरस्टैंडिंग भी है, तो क्लाइमेट मॉडल जो है कभी भी ये हमें नहीं बताएंगे कि एग्जैक्टली किस दिन किस टाइम के ऊपर जो है एक्सट्रीम वेदर इवेंट होगा। दैट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल जॉब एंड वेरी डिफिकल्ट जॉब। सो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की अगर स्टेटमेंट देखें फॉर ईयर 2016, तो 2016 के जो बेसिकली करंट सेंचुरी के 16 ईयर्स हैं वो हॉटेस्ट ईयर्स हैं। एक्सेप्शनल जो एक ईयर आता है 17 हॉटेस्ट ईयर का, जो सीरीज में आते हैं, जो रैंकिंग में 17 हॉटेस्ट ईयर है, उसमें 1998 का ईयर जो था लीनो ईयर था, वेरी स्ट्रॉन्ग है लीनो ईयर। तो वो लास्ट सेंचुरी में 1998 का ईयर ऐड कर लें और 16 ईयर जो है 2016 तक, ये 17 ईयर्स जो थे हॉटेस्ट थे इन 21st सेंचुरी अंटिल 2016। तो ये हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो करंट सेंचुरी जो है उसके टेम्परेचर जो है वो उनकी रैंकिंग हॉटेस्ट ईयर्स में है। सो अनदर व्यू ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्टेटमेंट फॉर लास्ट ईयर 2020, और इसमें जो है बेसिकली 5 जो है डेटा सेट्स को यूज़ किया गया है, जिसमें हेडले सेल सेंटर का है जो यूके का मेट ऑर्गेनाइजेशन है, नोवा यूएसए का है, इसके अलावा जो है ईरा जो है यूरोप का है, जेआरए जो है वो जापान का है, जिस जो है वो नीदरलैंड का। तो इन सारे डेटा सेट से जो है हमें देख सकते हैं, इट इज़ एविडेंट कि टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, और 20 ऑफ द 21st हॉटेस्ट ईयर जो है have been in 21st century until 2020, यानी कि सारे के सारे हॉटेस्ट ईयर ही आ रहे हैं रैंकिंग में।
इसके अलावा इंडियन ओशन डाइपोल मोड जो है, हम ये लर्न कर प्रीवियस लेक्चर में लर्न किया कि पॉजिटिव इंडियन ओशन डाइपोल मोड जो है, इट ब्रिंग्स मोर कन्वेक्टिव एक्टिविटीज ओवर इंडो पाक रीजन, जिसकी वजह से रेनफॉल जो है साउथ एशियन रीजन में ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। हाउएवर इन केस ऑफ नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल मोड जो है, वो ज़्यादातर रेनफॉल जो है आपको इंडोनेशिया, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया के ऊपर नज़र आती है, स्पेशली इन दी मानसून, समर मानसून सिस्टम, while there is a less rainfall over Indo-Pak region. इसके अलावा जो है एल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन है, इसके ऊपर भी साइंटिस्ट जो हैं वो वर्क कर रहे हैं कि किस तरह जो है क्लाइमेट चेंज जो है इन ऑसिलेशन की वजह से होती है, एल नीनो ऑसिलेशन की वजह से, जिसमें जो है बेसिकली दो तरह के जो हैं इवेंट्स होते हैं, एक ला नीना और सेकंड है एल नीनो, और कुछ ईयर्स जो है वो नॉर्मल ईयर्स भी होते हैं। The figure on the right lower side is showing the condition for the ENSO. ENSO जो है basically it is an abbreviation of El Nino Southern Oscillation. तो इसमें बेसिकली आप देख रहे हैं कि पैसिफिक ओशन में जो है बेसिकली ये ओसिलेशन होती हैं, और पैसिफिक ओशन में जो है ईस्टर्न साइड के ऊपर जो है सरफेस के ऊपर रिलेटिवली कूल टेम्परेचर कम होता है। होएवर ऑन द वेस्टर्न पैसिफिक साइड सरफेस के ऊपर जो है टेम्परेचर ज़्यादा होता है। वाइल विद इन द ओशन वाटर बॉडी देयर इज ए थर्मोकेलाइन, सो थर्मोकेलाइन इज रिप्रेजेंटिंग द लेयर विच डिफ्रेंशिएट हॉट वाटर फ्रॉम दी कोल्ड वाटर। तो थर्मोकेलाइन के नीचे वाला जो वाटर है बेसिकली इस लाइन के नीचे वो रिलेटिवली बड़ा कोल्डर होता है, और उसके ऊपर वाला जो है रिलेटिवली वो वार्मर होता है। एंड ये बेसिकली लाइन जो है ये एक थिन लेयर होती है जो कि सेपरेट कर रही होती है वार्म वाटर को फ्रॉम द कोल्ड वाटर। However, there is a thermohaline circulation जो कि तो जो सर्कुलेशन देख रहे हैं ओशन सर्कुलेशन, वाटर की ओशन सर्कुलेशन, वो कोल्ड वाटर जो है फ्रॉम बॉटम जो है सॉरी द वार्म वाटर, जो कोल्ड वाटर सॉरी जो सरफेस के ऊपर होता है ऑन द ईस्टर्न साइड, इट फ्लोज टूवर्ड्स द वेस्ट साइड, और जब वेस्ट साइड के ऊपर पहुंचता है कि वो वेस्ट का जो वाटर है पैसिफिक ओशन का वो रिलेटिवली वार्म होता है, तो ये नीचे की तरफ डिसेंड होता है, तो वो जिसकी वजह से एक सर्कुलेशन जो है विद इन द पैसिफिक ओशन बनती है। होएवर इन द एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के ऊपर क्या होता है कि कोल्ड टेम्परेचर जहां भी होगा या कोल्ड सरफेस होगी वहां पे जो है ड्राई कंडीशन होगी और हाई प्रेशर होगा, वाइल वेयर देयर इज ए वार्म टेम्परेचर वहां पे जो है वार्म कंडीशन की वजह से जो है लो प्रेशर जनरेट होगा उस सरफेस के ऊपर। तो जब लो सरफेस प्रेशर जनरेट होगा तो एयर जो है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ ब्लो करती है। टू कंपनसेट लो प्रेशर, winds from high pressure area moves towards the low pressure area। तो जब वो मूव करती हैं और वार्म जो ओशन का पार्ट है वहां तक पहुंचती हैं, तो ड्यू टू द वार्मिंग, एक तो वेट एयर मास है, ड्यू टू वार्मिंग जो है बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन भी हो रही है, और वार्म एयर जो है और वेट एयर है, बिकॉज वार्म वेट एयर इज लाइटर, तो वो ऊपर की तरफ लिफ्ट होगी, जब लिफ्ट होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन होगी आफ्टर कंडेंसेशन, और जब ट्रोपोपॉज तक वो पहुंचती हैं ये एयर सर्कुलेशन, तो ट्रोपोपॉज के नीचे जो है फिर ये राइटवर्ड मींस के वेस्ट से ईस्ट की तरफ अपर ट्रोपोस्फियर में ये मूव करती हैं, विच फॉर्म्स ए वाकर सर्कुलेशन। जिस तरह हेडले सेल की हमने बात की थी, ठीक है, हेडले सेल जो है वो इक्वेटर से नॉर्थवर्ड वर्ड बनता है। However, the Walker circulation is actually happening over the Pacific Ocean from east to west and from west to east.
तो थ्रू आउट दी एटमोस्फियर ट्रोपोस्फियर जो है ये वाकर सर्कुलेशन होती है। तो एल नीनो जो है साउदर्न एसिलेशन जिसको हम एनसो कहते हैं, ये एनसो जो है ये वाकर सर्कुलेशन को जो है चेंज करती है। और एनसो क्या है? एनसो मैंने बताया कि सी सरफेस टेम्परेचर, इट इज रिप्रेजेंटिंग सी सरफेस टेम्परेचर जो इंडेक्स है पैसिफिक ओशन का, ईस्ट साइड का, वेस्ट साइड का या सेंट्रल रीजन का, वो किस तरह का है उसके डिपेंडेंट जो है ये वाकर सर्कुलेशन होती है। और वाकर सर्कुलेशन के जो फिर जो वाकर सर्कुलेशन है ये कनेक्ट करती है रेनफॉल को, कि जो वेट वार्म एयर मास है वो किस तरफ जाएगा। तो वेट वार्म एयर मास जिस तरफ मूव करेगा वहाँ डेफिनेटली ज़्यादा रेनफॉल होगी। अगर यही वेट वार्म एयर मास जो है ये सेंट्रल पैसिफिक ओशन में आ जाएगा तो क्या होगा, जो कॉन्टिनेंटल एरिया है चाइना, जापान या पाकिस्तान, इंडिया की हम बात करते हैं तो वहाँ लेस रेनफॉल होगी। सो लेट्स डिस्कस थ्री कंडीशंस ऑफ एनसो। द फर्स्ट वन इज द नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में जो है आप ऊपर वाली फिगर में देख रहे हैं टेम्परेचर जो है थर्मोसेलाइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रही है द लाइन or the thin layer representing the difference of the two water bodies depending upon their density या temperature। थर्मोसेलाइन से नीचे जो है कोल्ड वाटर है और उसके ऊपर relatively warm। However on the surface के ऊपर जो है सी सरफेस टेम्परेचर वो ईस्टर्न साइड के ऊपर जो है relatively कोल्ड कंडीशन है। होवेवर ऑन द वेस्टर्न साइड रिलेटिवली जो है वार्म टेम्परेचर अनोमली है। तो जिसकी वजह से वेस्टर्न साइड कोस्टल एरिया उसके साथ चाइना, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया उन रीजन के ऊपर रिलेटिवली ज़्यादा रेनफॉल होती है नॉर्मल कंडीशन में। होवेवर अगर हम नॉर्मल कंडीशन से ला नीना कंडीशन में आए विच इज़ represented on the figure on right lower side, ला नीना कंडीशन में क्या है कि वो जो वार्म टेम्परेचर अनोमली है वो फर्दर वेस्ट की तरफ मूव करती है। जैसा कि नॉर्मल कंडीशन से अगर कंपेयर करें वो फर्दर वेस्ट की तरफ चलेगी। जब फर्दर वेस्ट की तरफ चलेगी तो इसका मतलब है इन एडिशन टू कोस्टल रीजन जो कॉन्टिनेंटल एरिया है उन कोस्टल एरिया के साथ साथ वहाँ रेनफॉल जो है कंपैरेटिवली ज्यादा होती है देन दी नॉर्मल कंडीशन। तो ला नीना ईयर्स जो हैं उनको हम कहते हैं वेट ईयर्स, ठीक है, वो ड्राई कंडीशन नहीं होती। होवेवर फॉर दी एल नीनो कंडीशन जो कि लेफ्ट लोअर फिगर है, एल नीनो कंडीशन में जो है वो वार्म टेम्परेचर जो नॉर्मली है वो वेस्ट से मूव करती है सेंट्रल रीजन की तरफ, जो आपको रेड कलर नजर आ रहा है। तो जब वो सेंटर की तरफ मूव करती है तो वाकर सर्कुलेशन जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, बल्कि वो वाकर सर्कुलेशन नहीं रहती बल्कि वो दोनों तरफ सर्कुलेशन, आपको मिड में जो है वो क्लाउड्स बन रहे हैं, पैसिफिक ओशन में ज़्यादा रेन होगी, और जो कॉन्टिनेंटल एरिया है स्पेशली चाइना, जापान, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, साइंटिस्ट कहते हैं कि वहाँ जो है रेन कम होती है। लेकिन मैं इस चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करता कि पाकिस्तान में हर एल नीनो ईयर में लेस रेनफॉल हुई हो, बिकॉज इट वाज माय टॉपिक ड्यूरिंग माय पीएचडी। कुछ एल नीनो ईयर्स हैं पाकिस्तान में बहुत वेट ईयर्स रहे, और कुछ ला नीना ईयर्स हैं जिसमें साइंटिस्ट कहते हैं कि वेट ईयर्स होना चाहिए, तो वो पाकिस्तान में ड्राई कंडीशन थी। ठीक है, सो इट डिपेंड्स कि किस तरह जो है आप इन एनसो कंडीशन को कोरिलेट करते हैं विद द एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन जिसमें वॉकर सर्कुलेशन है, और उसके साथ साथ जो डिफरेंट कंडीशंस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, टेम्परेचर वेरिएबिलिटी क्या हुई, प्रेसिपिटेशन की वेरिएबिलिटी क्या हुई। तो वो जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हमारे पास एविडेंस होंगे और उसके साथ साथ अंडरस्टैंडिंग होगी तभी हम कुछ कह सकते हैं कि एल नीनो कंडीशन में क्या होगा, ला नीना कंडीशन में क्या होगा। बट इन सम कंट्रीज स्पेशली चाइना, फिलीपीन, इंडोनेशिया, मलेशिया, ये एविडेंस जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है कि ला नीना ईयर्स जो हैं वहाँ वेट कंडीशन होती है, एल नीनो ईयर्स में ड्राई कंडीशन होती है या लेस रेन होती है।
तो नॉर्मल कंडीशन और ला नीना ईयर में जो है वाकर सर्कुलेशन तो रहती है अगर आप कंपेयर करें एटमॉस्फेयर वाली, जबकि एल नीनो ईयर में वाकर सर्कुलेशन जो है वो सेंटर से शुरू होती है, ठीक है, वो दोनों तरफ मूव करती है, वेस्ट से ईस्ट की तरफ भी जा रही है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ भी जा रही है, तो वो वाकर सर्कुलेशन टोटली डिस्टर्ब हो जाती है एल नीनो कंडीशन में। इसके अलावा अटलांटिक ओशन में भी जो है एक ओसिलेशन होती है जिसको हम कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन। So North Atlantic oscillation is a weather phenomena in the North Atlantic Ocean of fluctuations in difference of atmospheric pressure at sea level between Icelandic low and Azores high. So I am going to explain these two terms, Icelandic low and Azores high, in next slide. कि ये दो different regions हैं जहां लो और हाई प्रेशर एटमॉस्फेयर में डेवलप होता है एट सी लेवल, जिसकी वजह से ये ओसिलेशन जो है अटलांटिक ओसिलेशन या जिसको एनएओ कहते हैं वो वेदर फिनोमिना डेवलप होता है इन नॉर्थ अटलांटिक ओशन। The NAO is the dominant mode of winter climate variability in North Atlantic region ranging from central North America to Europe and much into North Asia. ये basically dominant mode है winter climate variability का in North Atlantic region, जो कि सेंट्रल नॉर्थ अमेरिका से लेकर यूरोप तक जाता है, एंड मच इनटू नॉर्दर्न एशिया। The NAO is a large scale seesaw in atmospheric mass between the subtropical high and polar low. तो वो जो आइसलैंडिक लो है जो बेसिकली इसको पोलर लो भी कहते हैं, और जो अजोर हाई है उसको सब ट्रॉपिकल हाई भी कहते हैं। तो ये सीसा कंडीशन होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, कि एक जगह अगर हाई है तो दूसरी जगह लो है। अगर पोलर रीजन के ऊपर हाई है तो सब ट्रॉपिकल जो है हाई नहीं होगी बल्कि सब ट्रॉपिकल लो होगी, जिसको हम अजोर लो कहते हैं। द कोरिस्पोंडिंग इंडेक्स वेरीज फ्रॉम ईयर टू ईयर। इंटर एनुअल वेरिएबिलिटी है इस इंडेक्स की, पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है, बट आल्सो एग्जिबिट्स अ टेंडेंसी टू रिमेन इन वन फेज फॉर इंटरवल्स लास्टिंग सेवरल ईयर्स। लेकिन इनकी टेंडेंसी होती है कि एक से ज्यादा साल के लिए भी एनएओ कंडीशन अगर पॉजिटिव है पॉजिटिव रहेंगी या नेगेटिव है तो नेगेटिव रहेंगी। However, there is a chance that index varies from year to year, mean interannual variability. So let's discuss positive NAO and negative NAO. So as we can see in the figure, which shows a stronger than unusual subtropical high, जिसको ये basically region है अटलांटिक ओशन के ऊपर, इसको हम कहते हैं अजोर हाई या सब ट्रॉपिकल हाई कहते हैं, जहां एच लिखा गया है और एल जहां लिखा गया है बेसिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है आइसलैंडिक लो, जिसको हम पोलर लो भी कहते हैं, एंड दैट डेवलप ऑलमोस्ट ओवर द ग्रीनलैंड रीजन। तो ये स्ट्रोंगर जो है सब ट्रॉपिकल हाई होती है और डीपर जो है आइसलैंडिक लो जो है वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। So the increased pressure gradient result in more and stronger winds, क्योंकि जब प्रेशर ग्रेडियंट लो भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है हाई भी बड़ी स्ट्रॉन्ग है तो ग्रेडियंट बड़ा ज्यादा होगा। तो जब ग्रेडियंट ज्यादा होगा तो इसका मतलब है विंटर स्टॉर्म्स या विंटर्स की जो विंड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग होंगी, जो कि क्रॉस करती हैं अटलांटिक ओशन को और मूव करती हैं नॉर्थवर्ड। जैसा कि वो देख लें मोर स्टॉर्म्स जो हैं वो नॉर्थवर्ड टर्न कर रहे हैं, कर्व नॉर्थवर्ड हो रहे हैं, और जब वो नॉर्थवर्ड कर्व होते हैं विच रिजल्ट्स इन वार्म एंड वेट विंटर्स इन यूरोप, ये यूरोप रीजन के ऊपर पहुंच जाती हैं। वार्म और वेट विंटर्स होते हैं यूरोप में, while there is cold and dry winter in northern Canada and Greenland, जहां लो प्रेशर होगा उन रीजन के ऊपर कोल्ड और ड्राई कंडीशन होगी। तो विंटर जो है कोल्ड और ड्राई रहते हैं ग्रीनलैंड और द कोस्टल रीजन ऑफ कनाडा, जो कि आपको येलो कलर में लो के लेफ्ट साइड पे नजर आ रहे हैं। होएवर मेडिटेरियन सी, अगर देखें मेडिटेरियन सी जो कि ड्राई लिखा गया है राइट साइड के ऊपर,
तो मेडिटेरियन सी और उसके साथ जो कुछ रीजन है वो रिलेटिवली ड्राई और कोल्ड रहते हैं पॉजिटिव एनओ मोड में। इन एडिशन द ईस्टर्न यूएस एक्सपीरियंस माइल्ड एंड वेट विंटर कंडीशन, जबकि यूएसए में देखें तो यूएसए में जो है ब्लू शेडिंग नजर आ रही है, तो वो जो है वेट विंटर कंडीशन है। while in negative NO index which shows a weak subtropical high, जो हाई है वो वीक होती है, और लो जो के जिसको आइसलैंडिक लो कहते हैं वो भी रिलेटिवली वीक होती है। जब दोनों वीक होगी, हाई भी वीक हो गई, लो भी वीक होगी, तो इसका मतलब है ग्रेडियंट जो है प्रेशर ग्रेडियंट वो वीक हो गया, which results in fewer and weaker winter storms crossing on more west eastward। तो वो पाथ जो कि कर्व्ड हो जाता है पॉजिटिव एनओ में, वो कर्व नहीं रहता बल्कि वो स्ट्रेट चले जाता है। जब वो स्ट्रेट जाता है दैट ब्रिंग्स मोर मॉइस्चर इनटू द मेडिटेरियन। ठीक है, मेडिटेरियन सी के ऊपर जो है ज्यादा रेनफॉल होगी, जबकि यूरोप वेट एरिया से ऊपर वाला जो एरिया है यूरोप वाला वो कोल्ड होता है और ड्राई होता है। while the area of Greenland and the coastal area of the Canada वो जो है वो भी relatively less cold होता है और wet होता है। However, the coastal area of the USA, the eastern side of the USA, जो कि येलो कलर नजर आ रहा है नेगेटिव एनओ में, वो भी जो है उसमें ज़्यादा सर्दी होगी और ड्राई कंडीशन होगी। तो ये बेसिकली इम्पैक्ट हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नॉर्थ अटलांटिक ओसिलेशन के। तो साइंटिस्ट कम्युनिटी जो है इन ओसिलेशन को इंडियन ओशन डायपोल मॉड हो जाए या एनसो हो जाए या एनओ, इन सारी ओसिलेशंस के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ये ओसिलेशन के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, और इन ओसिलेशन का फिर डेफिनेटली टेम्परेचर वेरिएबिलिटी के ऊपर, प्रेसिपिटेशन के ऊपर, वेट कंडीशन के ऊपर या ड्राई कंडीशन के ऊपर ऑल ओवर द ग्लोब क्या इम्पैक्ट होता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो एनसो की जब बात की जाती है तो रेनफॉल इज वेल बिलो नॉर्मल इन ऑल मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स। जितने भी स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स हैं, जो मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि एल नीनो ईयर्स में लेस रेनफॉल के चांसेस होते हैं, तो एविडेंस हमें यही कहता है कि जो मॉडरेट टू स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर्स थे पाकिस्तान में रेनफॉल नॉर्मल से कम थी, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी हैं 1994 और 1997। तो 1997 में देखें आप रेड कलर जो नजर आ रहा है 1997, तो है एल नीनो ईयर है, वेरी स्ट्रॉन्ग एल नीनो ईयर, लेकिन पाकिस्तान में जो रेनफॉल है वो बहुत ज्यादा हुई। या अगर हम बात करें लानीना ईयर्स की, तो लानीना ईयर्स जो हैं जो कि वो वाले ईयर्स हैं जिनमें ज़्यादा रेनफॉल होने के चांसेस होते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड या पाकिस्तान के ऊपर। तो लानीना ईयर्स में पाकिस्तान के ऊपर ड्राई कंडीशंस थी, तो इसलिए जो है हम ब्लाइंडली ये नहीं कह सकते, जिस तरह बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं पाकिस्तान में, वो जब भी रेनफॉल अनामली होती है, रेनफॉल एक्सट्रीम इवेंट्स होते हैं, कम रेनफॉल होगी या बहुत ज़्यादा होगी, उनको जो है एल नीनो के साथ लिंक कर देते हैं कि जी रेनफॉल कम हुई तो ये पाकिस्तान में जो है इसलिए हुई है जी एल नीनो ईयर है। लेकिन ये मैं ये भी नहीं कह रहा कि वो ठीक कह रहे हैं या गलत कह रहे हैं। द प्रॉब्लम इज देयर इज नो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एनसो विद द पाकिस्तान रेनफॉल। हमारे पास अभी तक वो फिजिकल अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि किस मैकेनिज्म के तहत जो है थ्रू वाकर सर्कुलेशन या कोई और सर्कुलेशन जो कि अफेक्ट करती है पाकिस्तान की समर मानसून रेनफॉल। तो इसके ऊपर जो है अभी डिबेट की जा सकती है, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया जा सकता है, लेकिन हम कंक्लूड नहीं कर सकते कि एल नीनो ईयर अगर होगा तो पाकिस्तान में रेनफॉल बिलो नॉर्मल होगी हमेशा, ऐसा नहीं होता।
तो पाकिस्तान में फ्लडिंग कंडीशन अगर देखें 2010 से 14 ऑल ओवर दी रीजन है, केपीके की बात करें, सिंध, पंजाब, सारे प्रोविंसेस में जो है फ्लडिंग इवेंट्स हैं। और ये फ्लडिंग इवेंट्स जो हैं, हमारे पास अब क्वेश्चन है एज ए साइंटिस्ट, क्या ये फ्लडिंग इवेंट्स जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से हैं? द आंसर में भी येस और नो। सो इट डिपेंड्स कि हमारी जो है वो अंडरस्टैंडिंग किस लेवल की है। सो ये बेसिकली जो एरियाज हैं, इनमें अभी रिसर्च होना बाकी है। हम सिर्फ आंखें बंद करके नहीं कह सकते कि 2012 में पंजाब में जो फ्लड आया था वो क्लाइमेट चेंज की वजह से हुआ था। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे पास एविडेंस नहीं है, हमारे पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हमने मॉडल से जो है, जो हमारे पास लिमिटेड ऑब्जर्वेशन है, उनसे हमने मॉडल से सेंसिटिविटी एनालिसिस नहीं की है। या अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एविडेंस भी अगर हैं, तो स्ट्रॉन्ग एविडेंस के बाद जो है हमारी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए फिजिकल, और उसके साथ साथ मॉडल जो हैं वो रिप्रेजेंट भी करें कि वाकई 2010 में 12 में जो है पंजाब में वो फ्लड जो है, हाँ ये क्लाइमेट वेरिएबिलिटी हुई थी उसकी वजह से हुआ था। तो बहुत सारे प्रोफेशनल जो है पाकिस्तान में बड़े बड़े फोरम के ऊपर जो है वो बात बड़े आराम से कर देते हैं कि जी ये इवेंट क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। वो हरगिज ऑन द बेसिस ऑफ, कह लें कि विदाउट विदाउट द बेस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग, विदाउट देयर बेस ऑफ द क्लाइमेट मॉडल, विदाउट देयर बेस ऑफ द स्ट्रोंगेस्ट एविडेंस, वो लोग बात कर रहे होते हैं, जो कि सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है। और पाकिस्तान में जो है मीन मैक्सिमम टेम्परेचर जो है नॉर्दर्न एरियाज में, ये अगर आप देखें उसका जो ट्रेंड है वो शो कर रहा है देयर इज एन इंक्रीजिंग ट्रेंड। जब इंक्रीजिंग ट्रेंड है तो इसका मतलब है ग्लेशियर और स्नो मेल्ट ज़्यादा हो रहे हैं पास्ट में भी, और फ्यूचर में अगर यही ट्रेंड रहा तो डेफिनेटली देयर इज अ चांस कि ग्लेशियर और स्नो मेल्ट होने के बाद हो सकता है ये परमानेंट ग्लेशियर बिल्कुल मौजूद ही ना हो आफ्टर सम टाइम। सो इट डिपेंड्स, but we need to carefully study the climate model data, जो कि फ्यूचर का डेटा होता है ऑन द बेसिस ऑफ आरसीपीज। आरसीपी 4.5 ये बेसिकली पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट की एक स्टडी है, डिकेडल मीन प्रेसिपिटेशन 10 ईयर्स का एंड ऑफ सेंचुरी तक। तो प्रेसिपिटेशन इवेंट्स जो हैं हम स्पेशली देख रहे हैं 2040 तक, तो जो है नॉर्दर्न एरियाज के पाकिस्तान तक 2031 से 40 तक वो इंक्रीज हो रहे हैं। लेकिन उसके बाद जो है ये डिकेडल मीन प्रेसिपिटेशन जो है वो ऑलमोस्ट देयर इज नो वेरिएबिलिटी, वो सेम रह रही है। तो इसका मतलब है बाय 2031 या 40 अंडर आरसीपी 4.5 चांसेस हैं कि जब ये प्रेसिपिटेशन इंक्रीज हो रही है, मे बी इसमें कुछ इवेंट्स जो हैं उनकी एक तो इंटेंसिटी इंक्रीज होने के भी चांसेस होंगे, और उसकी बेसिस के ऊपर फ्लडिंग होने के चांसेस होंगे। और अगर हम बात करें टेम्परेचर की ऑन द बेसिस ऑफ आरसीपी 4.5, और आरसीपी 4.5 जो है ये मिटिगेशन सिनेरियो है, ये बिजनेस एज यूजुअल भी नहीं है, एक्सट्रीम सिनेरियो भी नहीं है, बल्कि इसमें मिटिगेशन स्ट्रेटजीज हैं कि हमने कार्बन को कैप्चर करना है, किस तरह जो है ग्रीन हाउस गैसेस को लिमिट करना है। तो अंडर आरसीपी 4.5 पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया में जो है टेम्परेचर राइज जो है 1 से ऑलमोस्ट 4 डिग्री इंक्रीज आपको नज़र आ रहा है, स्पेशली इन दी नॉर्दर्न रीजन जो है वो अप टू 3 to 4 डिग्री इंक्रीज है। तो जब 3 से 4 डिग्री इंक्रीज है इन डिफरेंट डिकेड्स ऑफ दिस सेंचुरी, तो इसका मतलब है ग्लेशियर मेल्ट होंगे डेफिनेटली, अगर ये कंडीशन होगी फ्यूचर में। तो जो पाकिस्तान के लिए जो फ्यूचर में चैलेंज है, वाटर स्केर्सिटी का भी है और सरप्लस वाटर का भी है। और टेम्परेचर चेंज जो है अगर हम ग्लेशियर रीजन में देखें फ्रॉम 1931 टू 2014 इन द नॉर्दर्न एरिया 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, इन द सेंट्रल एरिया 0.4 डिग्री इंक्रीज, however in the southern region almost 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। तो पॉपुलेशन जो है पाकिस्तान की इंक्रीज हो रही है, इसका मतलब है वाटर अवेलेबिलिटी जो है या वाटर डिमांड
वो जब बढ़ेगी तो वाटर अवेलेबिलिटी पर कैपिटा वो डिक्रीज होगी। तो पाकिस्तान जो है ऑलरेडी इज अंडर वाटर स्केर्सिटी कंडीशन, सो दैट इज अ चैलेंजिंग पर्सपेक्टिव और फ्राइटनिंग पर्सपेक्टिव फॉर पाकिस्तान रिवर इंडस बेसन, जिसकी हम बात करते हैं कि जी बहुत अच्छा सिस्टम है, बहुत बड़ा लार्जेस्ट सिस्टम है। तो पाकिस्तान में जो है वाटर स्केर्सिटी भी होगी और कुछ जगहों पे सरप्लस वाटर होगा, उन एरियाज में जहाँ पे ग्लेशियर मेल्ट का वाटर अवेलेबल होगा। So then the conclusion of today's lecture, all indicators suggest that water cycle variability will be greatest challenge in changing climate. तो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो हमें बताते हैं कि वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी जो है उसमें चैलेंज है इन रिस्पेक्ट ऑफ द चेंजिंग क्लाइमेट, और इसको जो है हमने स्टडी करना है एज ए वाटर रिसोर्सेज इंजीनियर, एज ए साइंटिस्ट, एज एन इंजीनियर, सो जिसकी इन्वेस्टिगेशन या रिसर्च करने की ज़रूरत है। बिकॉज ऑन सम प्लेसेस देयर विल बी टू मच वाटर एंड ऑन अदर प्लेसेस 2 लीटर वाटर, क्योंकि वाटर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो चेंज हो रही है। जब वाटर साइकिल वेरिएबिलिटी होगी, कुछ एरिया के ऊपर जो है कम पानी होगा, कुछ एरिया के ऊपर ज़्यादा होगा। तो जहाँ कम वाटर अवेलेबल होगा इसका मतलब वो ड्राई कंडीशन होंगी, ड्राउट होंगे। जहाँ ज़्यादा वाटर होगा वहाँ फ्लडिंग कंडीशन होगी। So that's all about today's talk. If you have any question, the floor is open for you. So ये बेसिकली आपका कोर्स था, इसमें बेसिकली 2-3 चीज़ें जो है वो मिस हो गई आपके कोर्स में बिकॉज ऑफ द लिमिटेड टाइम। मेरी एक तो सेहत का प्रॉब्लम रहा 1 मंथ ऑलमोस्ट, तो जिसमें दो टॉपिक थे। एक टॉपिक था क्लाइमेट मॉडल्स का, हमने उसको टच कर लिया था शुरू के लेक्चर्स में, लेकिन उसको डिटेल डिस्कशन मैंने करनी थी, वो जो है एक वो टॉपिक रह गया। और सेकंड जो है फिजिक्स ऑफ इवेपोट्रांसपिरेशन या जो एनर्जी बैलेंस की हमने थोड़ी सी और डिटेल से बात करनी थी। तो वो 2 टॉपिक जो हैं जो बेसिकली मैंने सोचा हुआ था, लेकिन वो मैं अभी इस कोर्स में इंक्लूड नहीं कर रहा। However, I tried my best के जो बेस्ट लेवल या जो भी आपको मैक्सिमम जो आइडिया होना चाहिए इस कोर्स का वो मैंने डिलीवर कर दिया। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दिस कोर्स आप जो है बहुत सारे क्लाइमेट मॉडल्स अवेलेबल हैं, क्लाइमेट डेटा सेट्स अवेलेबल हैं। तो जिस भी डिसिप्लिन के ऊपर काम करना चाह रहे हैं आप, जो है फ्लड के ऊपर काम करना चाह रहे हैं वो भी कर सकते हैं, ड्राउट्स के ऊपर काम कर सकते हैं, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर सकते हैं कि फ्लो ड्यूरेशन कब कैसे चेंज होगी। अर्बन फ्लडिंग की अगर बात करते हैं तो अर्बन फ्लडिंग क्या फ्यूचर में, फॉर एग्जांपल हम पिंडी की बात करते हैं, लाहौर कराची जो हमारे अर्बन एरियाज हैं इनमें क्या कंडीशन होगी। हीट वेव्स की बात करें सिंध और साउथर्न पंजाब में तो ये एक चैलेंजिंग जॉब है, स्पेशली इन कराची जो कि 2011 की बात है। हीट वेव से काफ़ी लोगों की डेथ भी हुई, तो ये हीट वेव फिनोमेना भी हम स्टडी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वाटर साइकिल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, वाटर साइकिल का अनदर कंपोनेंट जो है इवेपोट्रांसपिरेशन, कि इवेपोट्रांसपिरेशन के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, एंड ऑफ सेंचुरी क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, वो भी हम जो है एनालिसिस कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो हैं टॉपिक्स हैं जो कि आपके डिसिप्लिन के और आपकी रिसर्च के रिलेटेड हो सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। एनी कमेंट, एनी क्वेश्चन? सर एक सवाल था सर, मेरे सोच में एक बात आई सर कि सर हम लोग तो सर क्लाइमेट जो एक्सट्रीम कंडीशन या एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स को हम लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम लोग सर स्पेसिफिकली सर ये जो लार्ज ड्रेनेज बेसिन सच एज अगर हम लोग इंडस रिवर, अमेज़न देख लें, और जो चाइना में हो गया सर 3 गॉर्जेस डैम जो अपना बेसिन,
तो सर यहाँ अगर हम लोग स्पेसिफिकली रिसर्च करते हैं कि क्या पूरा ईयर पैटर्न रहा या 10 साल जैसे रिवर रन ऑफ का पैटर्न रहा या प्रेसिपिटेशन का, क्या इससे हमें समझ नहीं आएगा कि सर स्पेसिफिकली इस रीजन में हम लोग प्रिडिक्ट कर पाए? ग्लोबल को छोड़ के सर हम लोग यहाँ तो ढूंढ नहीं सकते सर? प्रिडिक्शन इसके रेलेवेंट जो है, मैं एक छोटा सा जो है मैं अपना वाकया भी बताना चाहूँगा। ड्यूरिंग माय पीएचडी मेरा मिड टर्म डिफेंस था पीएचडी का, तो मैंने उधर जो है मिड टर्म डिफेंस में जो वन ऑफ द बेस्ट क्लाइमेटोलॉजिस्ट था जो दुनिया का, वो मेरा जीसी मेंबर था, प्रोफेसर किमोतो, जिसने सबसे फाइनेस्ट स्केल दुनिया का अभी तक जो है क्लाइमेट मॉडल डेवलप किया है जापान में, सबसे फाइनेस्ट स्केल। तो मैंने जो है बेसिकली जब अपना रिसर्च टॉपिक उसके सामने रखा, डिस्कशन की, तो मैंने यही प्रिडिक्शन का वर्ड यूज़ किया कि मैंने जो है वो प्रिडिक्शन करना चाहता हूँ, तो ये वो ना, तो उसके ऊपर काफ़ी जो है मेरी इंसल्ट की, विच वॉज वेरी राइट। ही एक्चुअली सेड वेरी राइट, क्योंकि प्रिडिक्शन जो है वो की नहीं जा सकती, उसकी उसकी बहुत सारी रीजंस हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक बहुत जो है इसको समरी से मैं कंक्लूड करता हूँ आपके क्वेश्चन को, कि याद होगा जब हमने मॉडल्स की बात कर रहे थे तो हम मॉडल रेजोल्यूशंस की बात की थी। तो जो आईपीसीसी असेसमेंट रिपोर्ट 5 में जो सबसे फाइनेस्ट स्केल मॉडल अवेलेबल है, दैट इज ऑफ 70 किलोमीटर बाय 70 किलोमीटर ग्रेड, ऐसे ही है। बिल्कुल सर। ठीक है, अब जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, फॉर एग्जांपल हम टर्नेडो की बात करते हैं। टर्नेडो जो है उसका अगर हम स्पेशल स्केल देखें, वो बहुत छोटा होता है, 70 बाय 70 किलोमीटर का नहीं होता वो, यानी कि 1 किलोमीटर के भी अंदर कितने ही टर्नेडोज हो सकते हैं 1 बाय 1 किलोमीटर में, राइट। तो बिल्कुल जब स्केल रेजोल्यूशन इतनी है, स्पेशल रेजोल्यूशन बहुत कोर्स है, तो इसका मतलब है मॉडल जो है उनको प्रिडिक्ट ही कर नहीं पाएंगे। एक बात ये, प्लस क्योंकि हमारे पास लिमिटेड अवेलेबल है डेटा। अगर हम ग्रिड को 1 बाय 1 मीटर पे भी, आपका क्वेश्चन हो सकता है जी हम क्लाइमेट मॉडल को 1 बाय 1 मीटर के ऊपर क्यों नहीं रन करते। 1 बाय 1 मीटर पर रन तो कर सकते हैं, प्रोसेसेस ज्यादा है। हमारे पास फिर फिजिकल प्रोसेसेस अंडरस्टैंडिंग 1 बाय 1 मीटर की होनी चाहिए कि 1 बाय 1 मीटर के ऊपर अगर 2 प्लांट्स भी लगे हुए हैं ना, उसका वेदर के ऊपर क्या इम्पैक्ट है, इम्पॉसिबल, जिसको हम कहते हैं पैरामीटराइजेशन, सब ग्रिड स्केल फिनोमेना। ये भी आप लोगों को मैंने जी जी। आपके साथ शेयर किया था। जब हमें सब ग्रिड स्केल फिनोमेना जो है उनकी फिजिक्स ऐड नहीं करेंगे, हम उनको पैरामीटराइज करेंगे, तो इसका मतलब है आउटपुट में आउटपुट जो है वो रेशनल नहीं होगी, क्योंकि पैरामीटराइज कर लिया ना स्टैटिस्टिकली। ठीक है, तो मॉडल्स की लिमिटेशन भी है, कंप्यूटेशनल कास्ट उसके साथ। अगर 1 बाय 1 मीटर की चले, हम कहते हैं अंडरस्टैंडिंग भी होगी हमारी, हमारे पास एविडेंस भी है, लेट्स अज्यूम स्ट्रॉन्गेस्ट एविडेंस भी है, ऑब्जर्व डेटा भी है, 1 बाय 1 मीटर के ऊपर हमने अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप कर ली, हमने मॉडल में फिजिक्स ऐड भी कर ली। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है, मॉडल्स को अब रन भी तो करना है। तो जो सुपर कंप्यूटर के ऊपर 1 बाय 1 मीटर को रन करेंगे, तो वो बिलियंस ऑफ ईयर्स लगाएगा 1 साल की सिमुलेशन के लिए। तो हम बिलियंस ऑफ ईयर तो वेट नहीं कर सकते, प्रिडिक्शन करनी है ना। ठीक है, तो हमारे पास फिजिकल अंडरस्टैंडिंग भी नहीं है, लिमिटेड डेटा है, कंप्यूटेशनल कॉस्ट मींस कि हम ज्यादा देर तक वेट नहीं कर सकते। तो ये लिमिट्स के होने की वजह से प्रिडिक्शन जो है वो हम कर नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि नस्ट की लेक है, ठीक है, इस स्केल के ऊपर हमारे पास फिजिकल एविडेंस हो, ठीक है, मॉडल जो है हम फाइन स्केल बनाएं, हम सिर्फ नस्ट का कैंपस ही ले लेते हैं और नस्ट की लेक का जो है इम्पैक्ट देखना चाहते हैं कि नस्ट की रेनफॉल के ऊपर कितना होता है। ठीक है,
तो अगर हमारे पास वो चीजें हैं, एविडेंस है, अंडरस्टैंडिंग है, देन वी कैन डू इट। लेकिन क्योंकि हमारे पास एविडेंस है ही नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही नहीं है, पूरी दुनिया में भी आपको ऑब्जर्वेशन इस लेवल तक नहीं मिलेंगी, इसलिए मॉडल को वो रन नहीं किया जाता इस छोटे से रीजन के लिए, उनको रीजनल स्केल के ऊपर, ठीक है, बड़े रीजन के ऊपर, छोटे छोटे स्केल्स के ऊपर रन नहीं किया जाता, ठीक है। क्योंकि जब हम छोटे रीजन के ऊपर रन करेंगे तो बाउंड्री कंडीशन भी तो है ना, बाउंड्री कंडीशन जो कि उसकी बाउंड्री के ऊपर, नस सेक्टर के बाहर वाली बाउंड्री है, वहां से भी तो हवा आएगी ना, हॉरिजॉन्टल फ्लक्स भी होगा, ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट की वजह से भी फर्क पड़ेगा। तो सिर्फ ये नस्ट की बाउंड्री नहीं, बल्कि नस्ट की बाउंड्री से बाहर वाला डेटा भी हमें चाहिए। तो ये सारी लिमिटेशंस कंसीडर करते हुए हम इसीलिए कहते हैं कि प्रेडिक्शन जो है वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मैंने पीएचडी में फिर जो लफर वर्ड इस्तेमाल किया था, तो वो उसी प्रोफेसर ने मुझे कहा कि मैं 35 सालों से 35 ईयर्स से आई एम वर्किंग इन एटमॉस्फेरिक फील्ड एंड क्लाइमेट फील्ड, आई एम नॉट यूजिंग प्रिडिक्शन वर्ड फ्रॉम लास्ट 35 ईयर्स, तो तुम कैसे ये प्रिडिक्शन का वर्ड यूज कर रहे हो। तो मैंने फिर उसको मॉडिफाई किया था अपनी पीएचडी में कि जो मैं बेसिकली फिजिकल अंडरस्टैंडिंग जो है वो इम्प्रूव कर रहा हूँ पाकिस्तान के केस में, ये अनहांस करेगी प्रिडिक्टेबिलिटी ऑफ द मॉडल्स, मॉडल की प्रिडिक्टेबिलिटी को एनहांस कर सकती है टू सम एक्सटेंट जब उस अंडरस्टैंडिंग को मॉडल के अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाए, राइट। तो इसलिए जो है प्रिडिक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है कि किस दिन किस जगह के ऊपर किस टाइम के ऊपर जो है हीट वेव, एक्सट्रीम इवेंट, प्रेसिपिटेशन एक्सट्रीम इवेंट, ठीक है, हैपन होगा। तो वो जो है इसलिए जो है इन लिमिटेशंस के बावजूद, बट साइंटिस्ट जो हैं इसके ऊपर अभी स्टिल वर्क कर रहे हैं कि किस तरह जो है इन मॉडल्स को इम्प्रूव किया जाए, अंडरस्टैंडिंग को इम्प्रूव किया जाए, एविडेंस ज़्यादा से ज़्यादा लाए जाएं, लेकिन इसके लिए टाइम लगेगा। और ऑन अदर साइड अगर मैं कहूँ रिलीजियस जो है रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जितने भी एक्सट्रीम इवेंट्स हैं जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो सारे यूनिक होते हैं, उनकी जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो सेम नहीं होती। तो अगर रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो जो अल्लाह ताला कहता है ना कि मैं फरिश्तों को हुक्म देता हूँ, हवा को इधर से उधर चला दो, बारिशों को बरसा दो, बादल को इधर से उधर ले जाओ, ठीक है। तो वो सारी यूनिक चीजें हैं। तो अगर हम साइंटिस्ट को या इंसानों को इन चीज़ों का अगर सारा पता लग जाए पहले, तो फिर अल्लाह ताला की एग्जिस्टेंस जो है वो फिर क्वेश्चनेबल हो सकती है, अस्तगफिरुल्लाह, हमें उस लेवल तक नहीं सोचना चाहिए। तो इसलिए इंसान के लिए अल्लाह ताला ने एक लेवल रखा है, वो वहीं तक जा सकता है, उससे ऊपर नहीं जा सकता। तो ये कोर्स जो है बेसिकली आपको थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग देता है कि हाँ ये एक चीज़ है, जहाँ तक लिमिट्स हैं, स्काई इज द लिमिट, वहां तक तो हमें जाना चाहिए ना। ये नहीं है कि हमें हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए, नहीं जी वो फरिश्ते लगे हुए हैं, हवाएं धकेल रहे हैं, बारिश बरसा रहे हैं, बस हमें कुछ नहीं करना, बस ठीक है डैम में पानी आ रहा है, बस डैम को ऑपरेट ही ना करो, कोई मसला नहीं। अच्छा यार अगर ड्राउट कंडीशन है, कोई मसला नहीं यार, अगले साल देखा जाएगा, है बारिशें होंगी तो ठीक हो जाएगा, तो वो हमें मैनेज करना है। तो जो लिमिट्स हैं वहां तक तो हमें जाना चाहिए, उसके लिए कोई क्वेश्चन नहीं है, उसके लिए कोई रोक टोक नहीं है जी। एनी अदर क्वेश्चन? होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन। जी सर। जी एनी अदर क्वेश्चन? No question. So I have so many questions for your end semester exams and wish you best of luck for your end semester exam. तो एंड सेमेस्टर एग्जाम जो है उसके बारे में अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, वी ऑलरेडी डिस्कस्ड
इन प्रीवियस सर लेक्चर फिर भी जो हाँ है ये पूछना था सर कि न्यूमेरिकल तो होगा तो नहीं सर? जहाँ इक्वेशंस हैं कुछ मेरे से हमने इक्वेशंस जी हाँ बिल्कुल। डेफिनेटली न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं। अभी मैंने कुछ नहीं सोचा, मैंने स्केच नहीं किया कि किस तरह का पेपर होगा। अगर जहाँ हमने इक्वेशन डिस्कस की हैं डेफिनेटली न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। राइट सर। एमसीक्यूज हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। शॉर्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते। ठीक है ना, जो भी होगा जो मैंने आपको बताया है ना इसी में से होगा। राइट। आउट ऑफ सिलेबस में कुछ नहीं, जो मैंने बताई नहीं है चीज वो मैं पूछूंगा नहीं। एंड सर एक सर ये लेक्चर अपलोड पर कीजिएगा सर, मैं प्रिंट करूंगा। ये मैंने अपलोड आज एडवांस में कर दिया है। शुक्रिया सर। पिछली दफा मैं भूल गया था, सॉरी। आज नहीं, मैंने एडवांस में जो है अपलोड कर चुका हूँ लेक्चर। थैंक यू सर। जी, एनी अदर क्वेश्चन? सो नो क्वेश्चन। नो सर। सो ओवरऑल कैसा कोर्स रहा है, इसको क्या कैसा देख रहे हैं इस कोर्स को एज कंपेयर टू माय प्रीवियस कोर्स अप्लाइड हाइड्रोलॉजी? सर ये मुझे तो खुद सर शुरू से शौक था सर। सर तीन चीज़ों का सर मुझे ज़्यादा शौक था कि वेदर पैटर्न हमारा कैसे चेंज हो रहा है और कैसे अफेक्ट कर रहा है, क्योंकि उससे पहले सर मुझे तो ये मालूम था कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल कैसे काम करता है, लेकिन स्पेसिफिक सर के फ्रॉम कैसे सर कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से विंड कैसे चेंज होती है, ओशन करंट्स कैसे होती हैं, तो कैसे ट्रांसफर होता है, तो ये सर रिलेशन नहीं बना पा रहा था पहले। इसलिए बहुत कुछ सवाल आते हैं, अभी मैं समझ पा रहा हूँ सब काफ़ी ज़्यादा। और ये भी सर पहले के सिर्फ इंडियन डायपोल को भी मैं नहीं देख सकता कि मैं कहूँ कि ड्राउट इस वजह से आ रहा है, ये पानी नहीं आ रहा, एल नीनो ला नीना को भी मैं एक इफेक्ट को रख सकता हूँ, लेकिन बहरहाल आपकी रिसर्च। जी सर। बहरहाल मैंने कोशिश की है। हमने बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं गए हर टॉपिक जी के। जी जी जी। हमने जो है ओवरऑल देखी है कि चीजें जो है जो लोग डिस्कस करते हैं बेसिकली। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। है। ये कोर्स जो था बेसिकली इंटरेक्टिव कोर्स था, टोटली इंटरेक्टिव कोर्स। और आप लोगों की तरफ से इंटरेक्शन रहा है कोई मिडवे तक। मिडवे के बाद मेरे ख्याल से पता नहीं सो गए हैं आप लोगों की, इंटरेस्ट लूज हो गई है, या मैं सही पढ़ा नहीं रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आई है। शुरू में इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहा है। असल में सर 5 टू सर रमज़ान में अच्छा वक्त था सर, 5 टू 8 ये टाइम होता सर कि बिल्कुल मेरी एनर्जी ख़त्म होती है सर। बस मुश्किल मुश्किल से सर जाग आपके साथ बातें या सवाल पूछ लेता हूँ। इंटरेक्शन जो है ना वो जिस तरह शुरू में था वो आहिस्ता आहिस्ता, एक तो उसकी बहुत बड़ी रीजन ये आई अंडरस्टैंड, वो सबसे बड़ी रीजन है ऑनलाइन क्लास। जी ऑनलाइन क्लास में इंटरेक्टिव सेशन रखना बहुत मुश्किल काम है। इट इज़ अ चैलेंजिंग जॉब फॉर द फैकल्टी आपसे ज़्यादा। कि मुझे मुझे जो है मेरे लिए ये होता है कि स्टूडेंट जागे रहें, ठीक है ना, इंटरेक्टिव रहें। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है थ्रू आउट दिस सेमेस्टर। अगर ये आप लोग होते फेस टू फेस फिर और स्टोरी होती इसकी, फिर सर आपको मैं लोगों को पता। जी सर आपकी बात सही है सर, मुझे सर 5 टू 8 का मैं पढ़ नहीं पाता सर, इतनी नींद आ रही होती है सर मुझे दिन सुबह सुबह। इसलिए मैं मुझे बीएससी इसलिए याद आता है सर कि उसमें सुबह फ्रेश होता हूँ सर, 2 बजे तक 3 बजे तक पढ़ाई हो रही हो। चले एनीवे, आई ट्राइड माय बेस्ट के जो है कुछ नॉलेज जो है इस कोर्स से आप थ्रू डिस्कशन आप लोगों को मिल जाए, एक आपको आइडिया हो जाए। और क्योंकि ये बेसिकली जो क्लाइमेट चेंज साइंस है इसके ऊपर रिसेंटली जो है बहुत काम हो रहा है, और पाकिस्तान में इसको जो है प्राइम मिनिस्टर भी जो है वो इसको बड़ा वो कहते हैं कि उसको पसंद करते हैं कि ये बेसिकली इसके ऊपर फंडिंग भी मौजूद है, प्लस ऑल ओवर द वर्ल्ड रिसर्च पोटेंशियल भी है, और फंडिंग, ये दोनों चीज़ें इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज़्यादा हैं। और इसीलिए जो है ये कोर्स जो था, ये पहले बेसिकली कोर्स नहीं था, ये मैंने जब पीएचडी की उसके 2-3 साल के बाद जो है ये मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था फर्स्ट टाइम एट नाइस। तो बेसिकली उसकी बेसिक रीज़न यही थी, एक तो मेरी इंटरेस्ट भी थी, और सेकेंडली पोटेंशियल जो है रिसर्च विद फंडिंग इसके ऊपर बहुत ज़्यादा है।
और रिसेंटली जो है एक मेरा प्रोजेक्ट भी जो है वो अप्रूव हो गया, बल्कि वो इनिशिएट भी हो चुका है 1 मई से यूनाइटेड नेशन यूनिवर्सिटी के साथ। हाईपैथ प्रोजेक्ट है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह उसके ऊपर भी वर्क कर रहे हैं, और वो भी जो है रिलेटेड टू इसी सब्जेक्ट के है, जिसमें जो है हम क्लाइमेट रेजिलिएंट जो है कुछ स्ट्रेटजीज फार्मर्स को दे रहे हैं कि क्या होनी चाहिए, स्पेशली रिलेटेड टू द इरिगेशन सेक्टर, कि फार्मर्स हैं इरिगेशन सेक्टर में हैं, क्या करें कि क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, तो क्या उनको जो है फ्यूचर में स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करनी चाहिए। तो आई होप कि आप जो है कुछ जो आपने लर्न किया है इसको फिजिकली जो है कहीं ना कहीं फील्ड में अप्लाई करेंगे, अपनी रिसर्च में भी अप्लाई करेंगे। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जो है आपका एंड सेमेस्टर एग्ज़ाम है, होपफुली आप लोग साथ साथ चलते ही रहें इस कोर्स के। फिर मैं यही कहता चलूँगा कि जो मेरी बेसिकली रिकॉर्डिंग है और इन लेक्चर्स को स्पेशली देखें, तो मेरा नहीं ख्याल कोई प्रॉब्लम होने लगा है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत ज़्यादा जो है मैं मेमोरी टेस्ट नहीं करूँगा, अंडरस्टैंडिंग टेस्ट, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होगी, कुछ मेमोरी का टेस्ट इतना ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो लेट्स सी कि एग्ज़ाम जो है वो उसके बाद ही फिर जब आपकी इवैल्यूएशन होगी कहाँ तक आप खड़े हैं, ठीक है। ओके सर जो 30% वेटेज है हमारा, तो वो सर सिर्फ ये 4 असाइनमेंट्स ही कवर होगा? यस, 30% जो है असाइनमेंट्स का और 70% आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम का वेटेज होगा। ठीक 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 सर, बिल्कुल ठीक। तो असाइनमेंट्स जिसने जमा करवाई हैं 30%, तो उनको पहले ही मार्क्स मिल गए। जिसने नहीं जमा करवाई या लेट जमा करवाई है उसके लिए थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क होगा, मैं क्या करूँगा। एनीवे, लेट सबमिशन के लिए मैं डेफिनेटली उसको कंसीडर करूँगा, लेकिन जिसने सबमिट ही नहीं की तो अब उसने अपने साथ खुद ज्यादती की है। होपफुली मेरे ख्याल से सारों ने, मैं 3 असाइनमेंट देखी थी, तीनों असाइनमेंट सब ने जमा की हुई थी, 4th असाइनमेंट मैंने अभी नहीं देखी। एनीवे, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।